Saraswati, the embodiment of knowledge. Now, I would like to call on this stage respected academic director sir, principal sir, guests for the lamp lighting ceremony. Sir, please come on the stage. To call Tanishka, Ekta and Ritika for Ganesh Vandana. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Director sir, to felicitate our guest Shri S.C. Batra sir. And we are providing LLB 3-year course and BLLB 5-year integrated course. And we are continuously organizing various activities throughout the year. As we know that moot court
is a important exercise of our curriculum. It is true that through the moot court we can understand how an advocate can present, can make his arguments before the court. But on the other hand, mock trial is also a good exercise or important exercise for the learning. Mock trial is a dramatic presentation of a imaginary case or on the basis of a decided case. Today, we have chosen one important case, Nanavati case. For that, we shall definitely learn something that how a criminal proceeding or the criminal trial will be initiated in a criminal court. For that, today we have invited two eminent personalities for watching, for evaluating of this mock trial. One is Shri S.C. Batra, who is a very learned judge, retired district judge, and at present he is practicing in High Court, in the Supreme Court, and various in other arbitral proceedings and other proceedings also. I welcome on behalf of the Integrated School of Law and Inventing Institution, I welcome sir in this institution. When I invite him, he without any hesitation accepts our invitation. Not only today, in the previous years also, he was here and appreciated the blessed to the students. I again welcome sir in this institution, and I hope that you will be available in coming days also in other exercises also. One another guest for today, who is a moot court expert especially. When the last years, we organized the moot court. He has contributed in the presentation of the moot court and evaluate mooters in the semi-final and the final rounds also. Professor Pankaj Tyagi is the head of the department in MMX College, Ghaziabad. That is a very premier institution, and in inculcating the law curriculum from the last 50 years, more than 50 years rather we can say. And he is an expert of moot court in his college, in other colleges also. And I would like to welcome on behalf of the Inventing Institution, I welcome sir in this institution, and hope definitely they will enjoy this exercise, not only for the purpose of the recreation, but that will give a message to you also that how the criminal proceeding runs in the criminal court. ये एक तरह से ये समझिए कि जैसे हम एक गली पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, और वो नुक्कड़ नाटक हमारे मन पर, हमारे दिलों पर एक छाप छोड़ जाता है और कुछ ना कुछ एक संदेश भी दे जाता है। ठीक इसी तरह से आज ये हमारा मॉक ट्रायल है। ये विधि की बारीकियों के बारे में हमें बताएगा कि विधि की बारीकियां क्या है, किस तरह से एक विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट होता है, वो किस तरह से अपनी गवाही हमारे सामने रखता है, और एक एडवोकेट किस तरह से उससे क्रॉस एग्जामिन करता है। एडवोकेट्स अपने
तीर तरह तरह से तरकश में से तीर निकालेंगे और दूसरे एडवोकेट पर छोड़ेंगे, लेकिन दूसरा एडवोकेट भी कमतर नहीं होगा, वो भी अपने तरकश में तीर भरे हुए है, वो भी सब तरह के तीर चलाए। एक बार जैसे बत्रा साहब जज है, हमारे यहाँ जज साहब आए थे, तो वो भी अपना अनुभव हम सबको स्टूडेंट्स को बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जब मैंने पहला केस सुना तो वादी की तरफ से जब एडवोकेट ने अपने आर्गुमेंट्स दिए तो मुझे लगा ये वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हीं के फेवर में केस डिसाइड होना चाहिए। उन्होंने मन बना लिया। लेकिन जब प्रतिवादी के वकील ने, एडवोकेट ने अपने आर्गुमेंट्स रखे तो ऐसा लगा कि ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात इनको बिल्कुल ठीक है, इनके फेवर में डिसाइड होना चाहिए। लेकिन केस तो एक ही के फेवर में डिसाइड होगा। इसी का नाम जजशिप है। यही न्यायाधीश का काम है कि उन बारीकियों को देखकर फैसला करना क्या ठीक है क्या गलत है। इसीलिए न्याय की देवी हाथ में तराजू लिए हुए है और बराबर बराबर रखे हुए हैं। अभी 13 तारीख को मेरठ कॉलेज में जस्टिस पंकज मित्तल आए थे। उन्होंने न्याय की देवी के बारे में कुछ बातें कही कि चंद्रचूड़ साहब के साथ मैं किसी फंक्शन में था और वहां कोई उद्घाटन था, तो ये बात है कि न्याय की देवी की आंखें बंद रखी गई हैं, क्यों है इन्हें खोला जाए। तो ये फैसला किया गया कि अब जो है न्याय की देवी की आंख पे पट्टी नहीं रहेगी। दूसरा कि वो साड़ी की वेशभूषा में होगी। तीसरी बात उन्होंने और बताई थी कि तलवार उनके हाथ में नहीं होगा, बल्कि वो क्या पता वो भूल गया शायद वो बात कि और कुछ होगा। तो समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं और हम कानून में भी देखते हैं कि कानून हमेशा एक सा नहीं रहता। यदि एक सा हो तो अदालतों की शायद हमें जरूरत ना पड़े। अदालत भी, कोर्ट्स भी नए नए फैसले रोज देती है। यदि हम अखबार को पढ़ें देखें तो सुप्रीम कोर्ट रोज नए नए लैंडमार्क जजमेंट दे रहा है। वो यही हमें इससे सीखना है। तो उसी कड़ी में आज हम एक इम्पोर्टेंट केस को लेकर आप सबके सामने हैं। आपके साथ ही नानावती का केस जो लगभग 70-80 साल पहले डिसाइड हुआ होगा ज्यूरी सिस्टम के माध्यम से, और अब तो ज्यूरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ज्यूरी का किस तरह से उसमें उपयोग किया जाता था ये भी हम इस केस में देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने बात समाप्त करना चाहूंगा। तो पुनः करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन्वेंटिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से। धन्यवाद। बोलो। मैंने एक आदमी को गोली मारी है। क्या गोली मारी है? जी हाँ, एक आदमी को गोली बैठो। नाम? कमांडर KM नानावटी। तुम्हारा नहीं, जिसे गोली मारी उसका नाम? प्रेम भगवान दास आहूजा। प्रेम आहूजा को कैसे जानते हो? मैं प्रेम आहूजा को सामाजिक रूप से जानता हूँ। 0.38 स्मिथ एंड विल्सन, क्या यही बंदूक थी? जी हाँ, यही बंदूक थी। हत्या कहां पर की? प्रेम आहूजा के बेडरूम। हत्या करने का कारण? कुछ महीने पहले मैं अपने शिप से वापस लौटा था। मेरे को लगा नॉर्मल सा दिन जाएगा, लेकिन वो था नहीं। तुम एक नेवी ऑफिसर हो, तुम्हें ऐसे काम करने पे शर्म आनी चाहिए। फिर भी मैं तुम्हारी वर्दी की गरिमा रखते हुए तुम्हें लॉकअप में ना रख के रिकॉर्ड रूम में रख रहा हूं और सीनियर्स को इन्फॉर्म करता हूं। कांस्टेबल, इसे रिकॉर्ड रूम में ले जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर लोबो, मैं कैप्टन कटारिया सर, यहाँ कावस से मिलने आया हूँ। कावस रिकॉर्ड रूम में। ठीक है। मैं आपको वहां कांस्टेबल के साथ भेजता हूं। कांस्टेबल, इन्हें रिकॉर्ड रूम में ले जाओ। तुम दोनों मेरा यहीं वेट करो, ये फाइल मुझे दो।
क्या बात है कावस, अकेले अकेले चेस खेल रहे हो? जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो। कैसे हो कावस? ठीक हूँ सर। देखो कावस, जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा, मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सभी लोगों से बात की और उन सभी को लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर साइन कर दो, बाकी का काम वकील कर लेगा। सर मुझसे अपराध हुआ है और इस चीज़ की सज़ा मेरे को मिलनी ही चाहिए। कावस, खुद पर अत्याचार करना बंद करो। तुम नेवल फोर्स में एक बहुत अच्छे कमांडर हो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सर मेरे को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर ये मैंने झूठ आज बोल दिया तो इस चीज़ का गिल्ट मेरे को लाइफ टाइम रहेगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। कावस, तुम समझ नहीं रहे हो ये कितने क्रूशियल मूवमेंट है। और वैसे भी तुम इतने अच्छे कमांडर हो, तुम्हारे जूनियर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने इसका? सर मैंने फैसला कर लिया है, ये मैं नहीं बोलूँ। कावस, समझ नहीं आता तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? देखो कावस, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम कैप्टन बनो और ऐसे क्रूशियल मूवमेंट पे जब हमारे विरोधी देश हम पर अटैक करना चाहते हैं, अगर ये बात जनता को पता लगी तो उनका भरोसा नेवी से उठ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। सर चेक एंड मेट। डैम इट यू फूल, तुम्हें अभी भी इस गेम की पड़ी हुई है। करो तुम्हें जो करना है। जय हिंद सर। कावस, मैं जानता हूं तुम ये जबरदस्ती कर रहे हो फैसला। सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेना। मैं ये फाइल यहीं छोड़ रहा हूं, इस पे मुझे साइन चाहिए तुम्हारे, ठीक है? जय हिंद सर। तुम दोनों, मैं चाहता हूं कावस की नेवल कस्टडी ली जाए। मिस्टर लोबो, कागजी कार्रवाई चालू करें। ऐसे कैसे कागजी कार्रवाई चालू कर सकते हैं? मर्डर के चार्जेस हैं कमांडर नानावती एक नेवी ऑफिसर हैं। और मर्डरर भी। अधिकारी बलों के साथ न बिगड़े, ऐसे केस के लिए हमारा नेवल कोर्ट है। आपको बता दूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे मत बताएं। तुम जानते नहीं ऑफिसर, नौसेना अधिनियम के तहत नौसेना अधिकारी द्वारा सभी अपराधों को मार्शल अदालत के तहत अजमाया जाता है। श्रीमान, नौसेना अधिनियम मैंने भी पढ़ रखा है। रेप और मर्डर के चार्जेस को छोड़ के बाकी सारे चार्जेस नौसेना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। मुझे मत बताएं। कमांडर नानावती हत्यारे नहीं है, वह एक नेवी ऑफिसर है, वह एक योद्धा है। श्रीमान लोबो, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आप नेवल कस्टडी नहीं देते हैं तो अदालत देगी। श्रीमान, ये जज और वकील के बीच की बात है, उन पे ही रहने दें। चलो सैम्यूल। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे अरे, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? ऊपर बैठो। क्या कर रहे हो दोनों? हाँ बताओ, क्या हुआ था उस दिन? साहब उस दिन ऐसा हुआ था कि कमांडर चुप। दोनों में से कोई एक बोलो। अरे तुम लोग तो पागल कर दोगे, कोई एक बोलो। बताओ क्या हुआ था उस दिन? साहब बहुत खुश थे। चाय पीकर बोले, दीपक जाओ, गर्मी बहुत है, हम नहाएंगे। साहब हम तौलिया बाथरूम में टांगे और थोड़ी देर बाद घंटी बजी। कौन था गेट पे? साहब गेट में नहीं थे। अरे गेट पे कौन आया था? तब मैं नहीं था। फिर किसने गेट खोला? साहब दरवाजा मैंने खोला था। हाँ, कौन था गेट पे बताओ? साहब दरवाजा खोला तो सामने कमांडर साहब खड़े थे। कमांडर नानावती? जी साहब। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने हमारे साहब के बारे में पूछा और उनके कमरे में चले गए सीधे। ठीक है, और क्या हुआ? जब वो कमरे में गए तो तुम क्या कर रहे थे? साहब मैं किचन में चाय बना रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? साहब कुछ देर बाद कुछ गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियां चलने की आवाज आई थी? जी साहब। क्या तुम्हें ठीक से याद है
कितनी गोलियां चलने की आवाज आई होंगी? यही साहब कुछ 1 2 साहब 3 गोलियां चलने की आवाज आई। तुम्हें ठीक से याद है? जी साहब मेरे कुछ भूल तो नहीं रहे तुम? नहीं नहीं, मेरे को सब कुछ याद है। मेरे जितना कान- पूछा जाए उतना ही बोलो। जी साहब। हाँ, और क्या हुआ था? और क्या देखा तुमने? साहब हम फिर भाग के कमरे में गए हाँ, और क्या कमरे में क्या देखा और तुमने? देखा कि सारा सामान फैला हुआ था हाँ, और हमारे साहब नीचे पड़े हुए थे। प्रेम आहूजा नीचे पड़ा हुआ था। जी साहब। और क्या देखा तुमने? और साहब हाँ, कमांडर साहब के हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी। कमांडर नानावती के हाथ में रिवॉल्वर साहब। थी। तुम्हें याद है ठीक से? जी साहब बिल्कुल ठीक से याद है। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। नमस्ते साहब। नमस्ते। जैसा कि आप सभी ने देखा, कैप्टन कटारिया के समझाने के बाद भी नानावती नहीं माने, लेकिन बाद में अपनी पत्नी सिल्विया के समझाने के बाद नानावती मान जाते हैं और अपना बयान बदल देते हैं। सीन 2 स्टार्ट। केस नंबर 1031, KM Nanavati versus the state of Maharashtra. My lord, I have a small request. Yes, please. In my 15 years of career and in the history of India, I never came across such a serious case than this. Not even heard, not read about this. The person standing there is not only my client but also a respectful Navy officer. And for the same reason, me having a request and Indian Navy having a desire that considering the status of Commander Nanavati, he should be granted with naval custody. That's all, Your Honor. Objection, my lord. Sustained. Thank you, my lord. My lord, Mr. Karl said one thing absolutely right, that Indian Navy had a great contribution for India, and that's also the reason I also respect Indian Navy. My lord, who doesn't know Commander Nanavati? Everyone knows him. Even the investigating officer, Mr. Lobo, kept him in the record room instead of lockup. My lord, if the court thinks sentimentally here, then the naval custody of Mr. Nanavati is valid. But Mr. Karl forget one thing, that murderers and rapists are not allowed to have naval custody under the Navy Act 1957. That's all, Your Honor. Objection, my lord. Objection sustained. My lord, my client is not a murderer. He is charged with murder. Your Honor, I will prove this court that my client is not a murderer. He is a warrior. I am not afraid of it at all. Defense counsel, I accept the request for naval custody, provided that the investigating officer may make an application to reverse the order if the slightest reason is shown there. The trial will now be held in the session court and the court is adjourned now. सीन 3। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम KM नानावती बनाम महाराष्ट्र की प्रस्तुति की जा रही है और इसमें प्रेम आहूजा की हत्या के अपराध की चार्जशीट पेश की जा रही है। सभी सावधान, जज साहब पधार रहे हैं। Case number 1031, KM Nanavati versus the state of Maharashtra. Thank you, my lord. My lord, KM नानावती एक नौसेना अधिकारी है और उन्होंने एक विदेशी लड़की सिल्विया से 27 अगस्त 1949 को शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। एक लड़का 9 साल का, एक लड़की 5 साल की और एक लड़का 3.5 साल का है और वो अभी मुंबई में जुहू चौपाटी बंगला नंबर 21 में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। माय लॉर्ड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि KM नानावती एक नौसेना अधिकारी है, इस वजह से उनका अधिकतर समय बाहर बीतता है। जब वो 27 अप्रैल 1959 को अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस और कुछ रूखापन देखा। जब KM नानावती ने सिल्विया से पूछा कि इन सब बदलाव का रीजन क्या है,
तो सिल्विया जी ने बताया कि अब वो पतिव्रता नहीं रही है और उनका अनैतिक संबंध प्रेम आहूजा के साथ है। ये सब सुनकर केएम नानावती ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और इसके चलते उन्होंने प्रेम आहूजा को मारने की साजिश रची और वो सीधे अपने पूरे परिवार को लेकर सिनेमा हॉल तक गए। वहाँ उन्हें 3:30 तक ड्रॉप किया और उसके बाद वो सीधे अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त कैफिया, जो कि एक नेवी ऑफिसर है, उनके ऑफिस गए। वहाँ से एक रिवॉल्वर और 6 गोलियों की मांग की। एक रिवॉल्वर और 6 गोलियां लेकर वो सीधे प्रेम आहूजा के ऑफिस गए, जो कि मिडिल ऑफ द स्टेट में स्थित है। लेकिन प्रेम आहूजा उस दिन ऑफिस नहीं गए थे। ये सब केएम नानावती को पता लगा तो वो सीधे उनके घर, जो कि अंधेरी वेस्ट बंगला नंबर 21 में स्थित है, वहां गए और वहां जाकर उनके बेडरूम में जाकर उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी और वहां से निकलकर अंधेरी वेस्ट के पुलिस थाने में अपना जुर्म खुद कबूल किया। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि जब केएम नानावती ने अपना जुर्म खुद कबूल ही कर लिया है तो उन्हें आईपीसी के सेक्शन 300 के तहत इसे हत्या मानकर व 302 के तहत आपराधिक दंड से दंडित किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू माय लॉर्ड। आई एम द डिफेंस लॉयर। माय लॉर्ड, वकालतनामा पेज नंबर 8 जो कोर्ट में पहले ही सबमिट कर दिया गया। एक्सेप्टेड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने जो इस कहानी के फैक्ट्स बताए हैं, वह फैक्ट्स इस कहानी के लिए बहुत रोचक है। वास्तविकता क्या है और इस कहानी के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं जो मैं कोर्ट में बताने की परमिशन चाहता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट यानी कि नानावती एक नेवी ऑफिसर है। उनकी पत्नी का नाम सिल्विया है। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने साथियों से भी। माय लॉर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि वह एक नौसेना अधिकारी हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा समय घर से बाहर दूर अकेला रहना पड़ता है, जिसके कारण उनका परिवार घर पर अकेला रहता है। हालांकि उनका परिवार घर पर अकेला रह जाता है, तभी इस बात का पता प्रेम आहूजा को लगता है। फिर प्रेम आहूजा मेरे क्लाइंट यानी कि नानावती के घर आने जाने लगते हैं। माय लॉर्ड, प्रेम आहूजा मेरे क्लाइंट की पत्नी सिल्विया को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेम आहूजा एक अयास किस्म के व्यक्ति थे। उनका काम था लड़कियों पर शेरो शायरी करना, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, उनका इस्तेमाल करना और छोड़ देना। सेम चीज वो सिल्विया के साथ भी कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे, जिसके तहत उन्होंने एक नई योजना बनाई और फिर वो सिल्विया को कहीं बाहर लेकर जाने लगे, पार्टीज में लेकर जाने लगे और बहुत सारे गिफ्ट्स देने लगे। इसी बीच सिल्विया को भी प्रेम आहूजा से लगाव हो गया। 27 अप्रैल 1959 को जब मेरे क्लाइंट अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ बदलाव व रूखापन पाया। जब उन्होंने इस बदलाव व रूखापन का कारण पूछा तो सिल्विया ने सब कुछ बता दिया जो सिल्विया और प्रेम आहूजा के बीच में था। यह बात सुनकर मेरे क्लाइंट कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना ही कोई एक्शन दिया और ना ही कुछ कहा, वह चुप रहे। फिर वो पूछे अपनी पत्नी से कि क्या प्रेम आहूजा तुमसे शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर सिल्विया ने कहा नहीं, और यह बात कहकर वह रोने लगी। फिर मेरे क्लाइंट कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम और बच्चे तैयार हो जाओ, हम सब मूवी देखने जाएंगे। माय लॉर्ड, मूवी की टाइमिंग थी शाम के 3 से 6 बजे तक की। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट अपने परिवार के साथ सिनेमा घर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद अपने परिवार से कहते हैं कि मैं तुम सबको मूवी खत्म होने पर यहीं से रिसीव कर लूंगा, और यह बात बोलकर वह सीधा अपने दफ्तर जाते हैं। वहां अपने करीबी दोस्त जो कि एक नेवी ऑफिसर है, कैफिया से एक रिवॉल्वर और 6 बुलेट्स की मांग करते हैं। जब कैफिया ने उनसे रिवॉल्वर और बुलेट्स लेने का रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया कि कल मेरे दोस्त की शादी है और मुझे वहां जाना है, मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर चाहिए। माय लॉर्ड, एविडेंस नंबर 1 पेज नंबर 25 पे मैंने शादी का
कार्ड कोर्ट में सबमिट कर दिया है, देख लीजिए। ओके सीन। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, फिर मेरे क्लाइंट वहां से प्रेम ओझा के ऑफिस गए, तब उन्हें पता चला कि प्रेम ओझा आज ऑफिस नहीं आए हैं, वह घर पर है। फिर मेरे क्लाइंट वहां से सीधा प्रेम ओझा के घर गए और गेट पे पहुंचने के बाद सर्वेंट से पूछा कि प्रेम ओझा कहाँ है। सर्वेंट ने जवाब दिया कि साहब कमरे में हैं, नहा रहे हैं। फिर वो प्रेम ओझा के बेडरूम में गए और प्रेम ओझा से पूछा कि क्या तुम मेरी पत्नी और बच्चों को अपनाओगे। यह बात सुनकर प्रेम ओझा गुस्सा हुए और अपशब्द कहा कि क्या मैं हर उस औरत से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सो चुका हूं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इसी बात को लेकर मेरे क्लाइंट को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बना, जिसके तहत मेरे क्लाइंट और प्रेम ओझा के बीच में बहस हुआ, हाथापाई हुई, झगड़े हुए। इसी दौरान मेरे क्लाइंट से बाय मिस्टेकली गोली चल गई, जिसके वजह से प्रेम ओझा की जान चली गई। माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि इसे आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या न मानकर यह आईपीसी की धारा 300 के एक्सेप्शन में फॉल होता है। तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्लाइंट को आईपीसी की धारा 300 एक्सेप्शन के तहत बचाव का मौका दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय लॉर्ड, जैसा कि मिस्टर कार्ल ने बताया कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, तो मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि ये कोई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि जब सिल्विया जी ने केएम नानावती को बताया कि अब वो प्रतिव्रता नहीं रही है और उनका अनैतिक संबंध प्रेम आहूजा के साथ है, तो उस समय घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे। और जब प्रेम आहूजा की हत्या हुई तो उस समय घड़ी में ठीक 6 बज रहे थे। माय लॉर्ड, इन दोनों ही घटनाओं के बीच 3 घंटे का समय बीत चुका है, तो ये कैसे सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं अब कटघरे में मिमी आहूजा को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिमी आहूजा हाजिर हो। मिमी आहूजा, 27 अप्रैल को आपके भाई की हत्या हुई, तो क्या आप उस समय घर पर ही थी? जी हाँ, मैं उस वक्त घर पर ही थी। तो उस समय क्या हुआ था ये आप न्यायालय को बताएं। केएम नानावती हमारे घर आए थे और कुछ ही देर बाद सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर वो उनसे बात करके चले गए, पर वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब केएम नानावती प्रेम आहूजा के घर आए थे तो वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ ही देर बाद 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उसके कुछ ही समय बाद इनको 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। Prosecution, do not repeat the same lines. सॉरी माय लॉर्ड। मिमी आहूजा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने जाके देखा तो मेरे भाई खून में लथपथ बाथरूम के पास पड़े थे और उनको 3 गोलियां लगी थी। क्या आपने अच्छे से देखा था? 3 गोलियां। मिमी आहूजा, ये घटना कितने समय की थी ये आप न्यायालय को बताएं। उस समय करीब शाम के 6 बजे थे। और जब केएम नानावती आपके घर आए थे तो उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था। और जब आपको 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी और आपने जाकर देखा कि आपके भाई प्रेम आहूजा खून से लथपथ पड़े हैं, तब केएम नानावती के हाथ में क्या था? तब उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। माय लॉर्ड, जैसा कि मिमी आहूजा ने बताया कि उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। मिमी आहूजा, क्या केएम नानावती ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रेम आहूजा जिंदा है या मर गए? जी नहीं, वो उसी वक्त वहां से चले गए। माय लॉर्ड, अगर ये सडन प्रोवोकेशन होता तो केएम नानावती ये जानने की कोशिश जरूर करते कि प्रेम आहूजा, जो कि उनके इतने अच्छे दोस्त थे, जिंदा है या मर गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो उसी समय वहां से निकल गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके थ्रू उन्होंने प्रेम आहूजा की हत्या कर दी। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस माय लॉर्ड।
हाँ तो मेमी ओझा, आप और आपका भाई प्रेम ओझा मुंबई में कब से और कहाँ रहते थे, कोर्ट में बताइए। मैं और मेरा भाई बंगलोर नंबर 23 अंधेरी वेस्ट में रहते थे। आपके भाई प्रेम ओझा क्या करते थे? मेरे भाई प्रेम आहूजा ऑटोमोबाइल कंपनी चलाते थे। उनका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था? मेरे भाई का लोगों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। मेमी ओझा, आप कोर्ट को ये बताइए कि प्रेम ओझा के कितने सारे दोस्त थे और आप उनमें से कितनों को जानती हैं? मैं उनमें से कुछ को ही जानती हूँ। प्रेम ओझा के कितने दोस्त रोज मिलने प्रेम ओझा से यानी कि आपके घर आया करते थे? मुझे नहीं पता, मैं और भाई अक्सर डाइनिंग एरिया में ही मिलते थे। क्या प्रेम ओझा की कोई महिला दोस्त थी जो आपके बारे में पता हो, जो आप जानती हो? कोर्ट में बताइए। शायद एक या दो। क्या आप नानावती को जानती हैं? जी हाँ, कैसे? हम दोनों के कॉमन फ्रेंड ने हमें एक पार्टी में मिलाया था। फिर तो आप सिल्विया को भी जानती होंगी। जी हाँ, तो आपको शायद ये भी पता होगा कि प्रेम ओझा और सिल्विया के बीच में कैसी दोस्ती थी? साधारण सी। क्या आपको प्रेम ओझा और सिल्विया के बीच के रिलेशन के बारे में पता था? जी नहीं, मुझे नहीं पता। 27 अप्रैल 1959 को आप कहाँ थी? मैं उस वक्त अपने घर पर ही थी। और जब कियम नानावती आपके घर आए तब आप कहाँ थी? मैं उस वक्त टीवी देखती। जब कियम नानावती आपके घर आए तो आपकी और कियम नानावती की कोई बातचीत हुआ? जी नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और क्या कियम नानावती गुस्से में लग रहे थे? जी हाँ, वो थोड़े गुस्से में थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी ना ही तो नानावती से कोई बातचीत हुई और ना ही कुछ इनकी कोई मुलाकात हुई। माय लॉर्ड ये देख के कैसे कह सकती हैं कि नानावती साहब उस समय गुस्से में लग रहे थे? अगर वो गुस्से में होते तो सर्वेंट से बात करने के बजाय डायरेक्ट वो प्रेम ओझा के पास जाते, लेकिन उन्होंने पहले प्रेम ओझा से बात किया। मिमी ओझा, जब आपके भाई की हत्या हुई तब आप कहाँ थी? मैं उस वक्त हॉल में थी। तो आपने क्या देखा फिर, कोर्ट में बताइए। मैंने देखा कि मेरे भाई अधमरी हालत में बाथरूम के पास पड़े हैं और केएम नानावती के हाथ में रिवॉल्वर थे। आप अपने भाई के कमरे में गई थी? जी हाँ। तभी तो आपने देखा कि आपके भाई बाथरूम के पास अधमरी स्थिति में पड़े थे और केएम नानावती के हाथ में रिवॉल्वर थी। आई एम राइट? यस। ओके। मेमी ओझा, आप ये बताइए कि जब आप अपने भाई के कमरे में गई थी तो आपने अपने भाई की डेड बॉडी के अलावा और केएम नानावती के हाथ में रिवॉल्वर के अलावा क्या देखा? कुछ आपको अजीबो गरीब लगा हो, जो आप कमरे में कुछ नोटिस की हो, कोर्ट को बताइए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। माय लॉर्ड ये झूठ बोल रही हैं क्योंकि ये कमरे में गई ही नहीं थी। अगर ये कमरे में गई होती तो इन्हें कमरे की हालत का पता होता। माय लॉर्ड, एविडेंस नंबर 2 पेज नंबर 25 जो कोर्ट में मैंने कुछ फोटोग्राफ सबमिट किया है। माय लॉर्ड, इस फोटोग्राफ्स को देखकर ये साफ पता चलता है कि प्रेम ओझा और मेरे क्लाइंट के बीच में हाथापाई हुआ था, जिसके वजह से कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। माय लॉर्ड, मेमी ओझा झूठ बोल रही है, ये कमरे में गई नहीं थी, झूठा गवाह पेश कर रही है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। Objection sustained. थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसा कि मिस्टर काल ने बोला कि केएम नानावती और प्रेम आहूजा के बीच झगड़ा मारपीट हुई थी, तो मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि उन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा या मारपीट नहीं हुई थी, क्योंकि प्रेम आहूजा को संभलने का मौका ही नहीं दिया गया। जब प्रेम आहूजा की हत्या हुई थी तो वो बाथरूम में थे और उनके शरीर पर सिर्फ 3 गोलियों के निशान हैं और कोई भी निशान नहीं थे। इसी बात को सही प्रूव करने और मेडिकल रिपोर्ट को सही से पेश करने के लिए मैं डॉक्टर तनिष्का को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। Permission granted. थैंक यू माय लॉर्ड। डॉक्टर तनिष्का हाजिर हो। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं।
डॉक्टर तनिष्का, प्रेम आहूजा की हत्या कैसे हुई ये आप अदालत को बताएं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत 3 गोली लगने की वजह से हुई थी, जो कि तकरीबन 6 से 7 फुट की दूरी से चलाई गई होंगी। माय लॉर्ड, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि प्रेम आहूजा की हत्या 3 गोली लगने के कारण हुई थी और उनके शरीर पर कोई और भी निशान नहीं था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रेम आहूजा और केएम नानावती के बीच कोई मारपीट नहीं हुई थी और प्रेम आहूजा की हत्या 3 गोलियां लगने के कारण हुई थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो थैंक यू माय लॉर्ड। यू मे गो नाउ। माय लॉर्ड, डॉक्टर ने जो बातें कही और मेडिकल रिपोर्ट में जो ये बातें थी, इन सबको सही प्रूव करने के लिए मैं अब विटनेस बॉक्स में प्रेम आहूजा के घर काम कर रहे एक सर्वेंट राजू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। सर्वेंट राजू हाजिर हो। ये राजू हाजिर हो। क्या आप केएम नानावती को जानते हैं? जी साहब। आप उनको कैसे और कब से जानते हैं? यही कुछ 2-3 बार से साहब पार्टी में आए थे, तब से जानता हूँ। जब वो 27 अप्रैल को प्रेम आहूजा के घर आए थे तो क्या आप उस दिन घर पर ही थे? जी साहब। तो क्या दरवाजा आपने ही खोला था? जी बिल्कुल साहब। तो उस वक्त क्या हुआ था ये आप न्यायालय को बताएं। साहब, कमांडर साहब घर पर आए थे और उन्होंने हमारे साहब के बारे में पूछा और सीधा उनके कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कुछ गोलियां चलने की आवाज आई। कितनी गोलियां चलने की आवाज आई? यही कुछ साहब 3 गोलियां चलने की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ? साहब फिर भागकर हम कमरे में गए तो देखा सारा सामान फैला हुआ था। तो क्या प्रेम आहूजा की डेड बॉडी बाथरूम के पास ही पड़ी थी? जी साहब। आपने अच्छे से देखा था? जी बिल्कुल अच्छे से देखा था। उनके शरीर पर क्या 3 गोलियों के अलावा कोई और निशान थे? जी नहीं। क्या उनके शरीर पर तौलिया लपटा हुआ था? जी हाँ, लपटा हुआ था। माय लॉर्ड, जैसे कि राजू ने बातें बताई कि उनके शरीर पर तौलिया लपटा हुआ था, उनके शरीर पर 3 गोलियों के निशान के अलावा कोई और भी निशान नहीं था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि केएम नानावती और प्रेम आहूजा के बीच झगड़ा या मारपीट नहीं हुई थी, क्योंकि झगड़ा या मारपीट होती तो उनके शरीर पर तौलिया ना लिपटा हुआ होता और वो नग्न अवस्था में बाथरूम के पास ही पड़े होते। दैट्स ऑल योर ऑनर। राजू, यू मे गो नाउ। कि इस हत्या के पीछे मेरे क्लाइंट यानी कि नानावती की कोई साजिश और इंटेंशन है। माय लॉर्ड, इस हत्या के पीछे मेरे क्लाइंट की कोई इंटेंशन और साजिश नहीं है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इनके करीबी दोस्त कैफिया, जो कि एक नेवी ऑफिसर हैं, उनको विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। नेवी ऑफिसर कैफिया हाजिर हो। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कि जब नानावती साहब आपके पास आए थे बंदूक व गोलियां लेने, तो क्या आपने बंदूक व गोलियों को एंट्री रजिस्टर में रजिस्टर किया था? हाँ जी, मैंने बिल्कुल रजिस्टर किया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने रजिस्टर किया था। अगर मेरे क्लाइंट को इस हत्या के पीछे इंटेंशन या साजिश होती तो वो कभी रजिस्टर नहीं कराते, वो बिना रजिस्टर किए गन लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैफिया, आप ये बताइए कि जब नानावती साहब आपके पास आए थे तो क्या वो गुस्से में लग रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल गुस्से में नहीं लग रहे थे। मतलब वो बिल्कुल गुस्से में नहीं लग रहे थे। और आपको ये कैसे पता चला? आप ये कैसे इतने यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो गुस्से में नहीं थे? कोर्ट में बताइए तो। मुझे उनके स्वभाव से पता चला कि वो बिल्कुल गुस्से में नहीं थे। थैंक यू कैफिया। मतलब इनको उनके स्वभाव से पता चला कि वो बिल्कुल गुस्से में नहीं थे। आप उनके स्वभाव के बारे में कोर्ट को बताइए। नानावती बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी बहुत मिलकर रहते हैं, वो कभी अपने दोस्तों के लिए बुरा नहीं सोच सकते। थैंक यू कैफिया। माय लॉर्ड, दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड।
माय लॉर्ड, जैसा कि कैफे ने बताया और जैसा कि मिस्टर काल ने बोला कि केएम नानावती का इस हत्या के पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो मैं मिस्टर काल से पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके कोई भी इंटेंशन नहीं थी तो वो अपने इतने अच्छे दोस्त के घर रिवॉल्वर लेकर क्यों पहुंचे? और माय लॉर्ड, कैफिया का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अगर कैफिया का और इस बात का इस केस से कुछ लेना देना न हुआ तो मैं अपना काला कोट उतारकर फेंक दूंगा माय लॉर्ड। चिल्लाने से कुछ नहीं होता वकील साहब, अदालत सबूत मांगती है। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। सॉरी माय लॉर्ड। Examination, please. नो थैंक यू माय लॉर्ड। यू मे गो नाउ। माय लॉर्ड, प्रेम ओझा एक गुस्से वाले व्यक्ति है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेते थे। माय लॉर्ड, ऐसा ही एक वाकया है जिसको प्रूफ करने के लिए मैं एक कैफे में काम करने वाली वेट्रेस जूली को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। Permission granted. थैंक यू माय लॉर्ड। वेट्रेस जूली हाजिर हो। अरे वेट्रेस जूली हाजिर हो। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप प्रेम ओझा को जानती हैं? जी हाँ साहब। क्या अखबार में खबर आपने छापी थी? जी हाँ साहब। माय लॉर्ड, ये वो अखबार है जो इनकी प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस वर्क। जूली, आपने अपने अखबार में प्रेम ओझा के कैरेक्टर पे सवाल उठाए हैं और वह सवाल क्यों उठाए हैं आप कोर्ट को बताइए। जज साहब, वो बहुत ही अय्याश किस्म के इंसान थे। उनका पार्टियों में आना जाना लगा रहता था और वो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में भी फंसाया करते थे। जूली, आप ये बताइए कि 14 अप्रैल को जब नानावती आपके कैफे आए थे तो प्रेम ओझा और आपकी कोई झगड़ा हुआ था, वह झगड़ा आप कोर्ट में बताइए। जज साहब, मैं एक कैफे में काम करती हूँ और उन लोगों का अक्सर वहाँ पे आना जाना लगा रहता था। जज साहब, एक दिन वो लोग कैफे में आए हुए थे तो प्रेम आहूजा साहब ने जूस ऑर्डर किया था और जैसे ही मैं वहाँ जूस लेकर गई, मैं क्या देखती हूँ, जूस मेरे से प्रेम आहूजा साहब के जूतों पर गिर जाता है। जज साहब, बस इतनी सी ही बात थी। अब आप ही बताइए, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मेरे सिर पर रख दी। जज साहब, आप ही बताइए, क्या इतनी सी बात पर कोई ऐसा करता है? आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। सॉरी सर। जूली, आपसे जितना पूछा जा रहा है आप कोर्ट में उतना ही जवाब। सॉरी। वो तो अच्छा हुआ साहब, वहाँ पर नानावती साहब थे और उन्होंने उन्हें समझा लिया और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। थैंक यू। माय लॉर्ड, जैसा कि वेट्रेस की बातों से पता चलता है कि प्रेम ओझा एक छोटी सी बात थी, वेट्रेस जूली से गलती से उनके जूतों पर जूस गिर गया था और इतनी सी ही बात पर वह अपनी रिवॉल्वर निकाल लिए थे और इनके सर पर रख दिया था और वहां पर मेरे क्लाइंट ने ही उनको शांत करवाया था। माय लॉर्ड, प्रेम ओझा अपने इस हरकत की वजह से होटल से माफी मांगी थी। उन्होंने एक माफीनामा लिखा था जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा था कि हाँ, मैं गुस्से में आ गया था और मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। माय लॉर्ड, मैं माफीनामा एविडेंस नंबर 3 पेज नंबर 25 पे सबमिटर दिखाने की परमिशन चाहता हूँ। नो माय लॉर्ड, नो थैंक यू। माय लॉर्ड, जो ये माफीनामा अदालत में दिखाया गया है ये झूठा है और जूली का इस केस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अगर जूली का इस केस से कुछ लेना देना न हुआ और यह माफीनामा अगर झूठा कैसे हुआ जब प्रेम ओझा के खुद के हस्ताक्षर इस माफीनामे पर है। थैंक यू माय लॉर्ड। जूली, यू मे गो नाउ। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह
जो कि एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर एकता को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। रिपोर्टर एकता हाजिर हो। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। रिपोर्टर एकता, आपने भी अपने अखबार में प्रेम आहूजा के कैरेक्टर पे सवाल उठाए थे। जी हाँ। वह सवाल क्यों उठाए थे, कोर्ट को बताइए। हम सबको पता है वह कयास टाइप के इंसान थे। उनका लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, घुमाना फिराना, ये सब शौक थे। स्मोक, ड्रिंक ये सब करते थे। एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग फॉर हिम। तो इन सबसे तो यही साबित होता है कि वह कयास टाइप के इंसान थे। थैंक यू। मतलब इनकी भी बातों से साफ जाहिर होता है कि प्रेम आहूजा एक अयास किस्म के व्यक्ति थे। उनका काम ही था लड़कियों को इस्तेमाल करना और उनको छोड़ देना। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जो ये पत्रकार बातें बता रही हैं ये झूठी है। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया है। किसी के साथ घूमना फिरना, आना जाना, इससे कैसे जाहिर हो सकता है कि कोई व्यक्ति कैरेक्टरलेस है। माय लॉर्ड, ये पत्रकार ऐसी झूठी कहानियां बनाते हैं ताकि इनके न्यूज़पेपर को फेम मिल सके और ऐसे अच्छे और ईमानदार व्यक्तियों पर ऐसे झूठे मामले लगाए जा सकें ताकि उनके कैरेक्टर पर ऐसे सवाल उठाए जा सके। यहाँ भी सेम ऐसी ही चीज हो रही है। माय लॉर्ड, मिस्टर काल के पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है और ये सब बातें सिर्फ केएम नानावती को बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर प्रोसिक्यूशन, डू यू वांट टू क्रॉस? नो थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू एकता, यू मे गो नाउ। माय लॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट की पत्नी सिल्विया से कुछ पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं उनको विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। सिल्विया हाजिर हो। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सिल्विया जी, आप अपने पति को कब से जानती हैं? अराउंड 10 years। अपने पति के स्वभाव के बारे में कोर्ट में बताइए। मेरे पति बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। वे मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने दोस्तों से भी बहुत प्यार करते हैं। जब केएम नानावती 27 अप्रैल 1959 को अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आए तो आपकी और उनकी क्या बात हुई, कोर्ट में बताइए। जब नानावती वापस लौटे तो मैंने उन्हें अपने और प्रेम आहूजा के रिलेशन के बारे में बताया था। और यह बात सुनकर उन्होंने रिएक्ट कैसा किया था? यह बात सुन के उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, यानी कि वह उस समय नॉर्मल थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्रॉस एग्जामिनेशन। यस थैंक यू माय लॉर्ड। सिल्विया जी, क्या आप प्रेम आहूजा को जानती हैं? यस। कब से और कैसे जानती हैं? कुछ ही समय पहले नानावती के फ्रेंड ने ही हमें मिलवाया था। तो अदालत को बताएं कि आपकी और उनकी दोस्ती या रिलेशन कैसा था। We were just friends। सिल्विया जी, मैं आपके और प्रेम आहूजा के रिलेशन की बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, मैं इस रिलेशन के बारे में कोर्ट को पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी प्रोसिक्यूशन बार बार वही सवाल पूछ रहा है। माय लॉर्ड, मैं इन रिलेशंस के बारे में सिल्विया जी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ तो सिल्विया जी बताएं, आपके रिलेशंस कैसे थे? मेरे पति महीनों बाहर रहते थे एंड आई वाज फीलिंग वेरी लोनली। तो प्रेम आहूजा मुझे पार्टीज में ले जाया करते थे। तभी से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी और मुझे उनसे प्यार हो गया। तो क्या आप उनसे शादी करना चाहती थी? यस, लेकिन वो नहीं चाहते थे और मुझे उनके बहुत सारे रिलेशंस के बारे में पता चला था। तो क्या आप दोनों के रिलेशन के बारे में आपके पति को पता था? नो। अच्छा सिल्विया जी, 27 अप्रैल को क्या हुआ था ये विस्तार से आप कोर्ट को बताएं।
जब नानावती वापस आए तो मैंने अपने और प्रेम आहूजा के रिलेशन के बारे में बताया था। यह बात सुन के उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था। उन्होंने बस मुझे और बच्चों को तैयार होने के लिए कहा कि वो हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे और वो हमें 6 बजे तक वापस भी ले आएंगे। फिर वो टिकट लेने चले गए। माय लॉर्ड, सिल्विया जी झूठ बोल रही हैं। कोई इतना अच्छा व्यक्ति अपने परिवार से इतना प्यार करता हो, अपने दोस्तों पे शक भी ना रखता हो, लेकिन ऐसी बातें सुने और कुछ रिएक्शन ना दे, ये तो इम्पॉसिबल है। माय लॉर्ड, ये सिर्फ झूठी बातें बना रही हैं ताकि इनके पति को बचाव का मौका मिल सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, अगर मेरे क्लाइंट नानावती को उस समय गुस्सा आया होता तो वह अपनी पत्नी को और बच्चों को मूवी दिखाने नहीं ले जाते, बल्कि उस गुस्से में अपनी पत्नी को भला बुरा कह सकते थे, उन पर अपनी गुस्सा निकाल सकते थे। माय लॉर्ड, उन्हें गुस्सा आया ही नहीं था, वो उस समय सिर्फ नॉर्मल थे। सिल्विया, यू मे गो नाउ। माय लॉर्ड, अब मैं केएम नानावती से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। केएम नानावती, क्या आप प्रेम आहूजा को जानते हो? जी हाँ, मैं प्रेम आहूजा को जानता हूँ। आप उन्हें कब से और कैसे जानते हो? कुछ महीने पहले हमारे दोस्त अनिल ने हमारा उनसे परिचय करवाया था। आपकी और उनकी दोस्ती कैसी थी? मेरी और प्रेम आहूजा की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। तो क्या आपको आपकी पत्नी और प्रेम आहूजा के रिलेशन के बारे में पता था? पहले तो नहीं पता था, लेकिन मैं जब घर आया तब मेरी वाइफ घर पर नहीं थी। जब वो आई, मैं आपसे आपकी पत्नी और प्रेम आहूजा के रिलेशन की बात कर रही हूँ। जी, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। अच्छा ठीक है, जब आपको उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता लगा तब आपने क्या रिएक्शन दिया? मेरे को काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इनको बहुत गुस्सा आया था और मिस्टर कार्ल ने बोला कि उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। नोटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं सिनेमा चला गया था टिकट लेने के लिए। जी नहीं, आप सिनेमा गए ही नहीं थे क्योंकि आपका मकसद प्रेम आहूजा की हत्या करना था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को मिसलीड किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आप मूवी देखने गए थे, तो मूवी की टाइमिंग्स क्या थी? करीब 3 बजे से 6 बजे तक। कौन सी मूवी देखने गए थे आप? हम लोग टॉम थम मूवी देखने गए। वो सब तो ठीक है, जब आप ये मिथ्या कथन कर रहे थे अपनी सिविल रिवॉल्वर प्राप्त करने के लिए, तो ये बताएं कि आपने प्रेम आहूजा की हत्या करने का क्यों सोचा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट में ये पहले ही साबित कर चुका हूँ और कोर्ट को बता चुका हूँ कि मेरे क्लाइंट रिवॉल्वर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लिए थे, न कि किसी और बात के लिए। माय लॉर्ड, अगर मेरे क्लाइंट की इस हत्या के पीछे साजिश होती तो मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कोर्ट को वो रजिस्टर में बिना एंट्री कराए गन लेकर जा सकते थे और उनको प्रेम आहूजा के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो प्रेम आहूजा को कहीं बाहर बुलाकर हत्या कर सकते थे, छुप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। माय लॉर्ड, यह हत्या मेरे क्लाइंट से और प्रेम आहूजा की जान इसलिए गई क्योंकि प्रेम आहूजा ने मेरे क्लाइंट को एक सडन प्रोवोकेशन का उकसाव दिया था। उन्होंने इनकी पत्नी पर अपशब्द कहा था, जिसकी वजह से इनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बना था और ये हत्या हुई थी। माय लॉर्ड, इन द केस ऑफ सुलजीना धन वर्सेस स्टेट ऑफ असम में कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कहा गया ऐसा अपशब्द या कोई भी की गई ऐसी प्रतिक्रिया जिससे एक मनुष्य उत्सित होकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो माय लॉर्ड वो कंसीडर किया जाता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। माय लॉर्ड, सेम सिचुएशन मेरे क्लाइंट के केस में भी है, क्योंकि प्रेम आहूजा ने इनको उकसाया, अपशब्द कहा, जिसकी वजह से इनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बना और इनसे ये घटना घट गई। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय लॉर्ड,
मिस्टर कार्ल ने जिन केस का हवाला देते हुए ये सडन प्रोवोकेशन की बातें बताई हैं, तो मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि इन द केस ऑफ महमूद वर्सेस स्टेट द कोर्ट हेल्ड दैट किसी भी घटना, किसी भी एक्ट का सडन प्रोवोकेशन का में आना, उसके लिए उस एक्ट का सडन होना यानी कि उसी समय होना आवश्यक है। लेकिन नानावती के केस में 3 घंटे का समय ऑलरेडी बीत चुका है, तो ये कैसे सडन प्रोवोकेशन की कैटेगरी में आता है माय लॉर्ड। और जैसा कि मिस्टर कार्ल ने बताया कि केएम नानावती को गुस्सा इस बात पे आया था कि प्रेम आहूजा ने कुछ अपशब्द कहे थे कि क्या मैं हर उस लड़की से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सो चुका हूं। माय लॉर्ड, तो मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि जब ये वाक्य हुआ तो उस समय कमरे में 2 ही लोग मौजूद थे, केएम नानावती और प्रेम आहूजा जिसकी अब हत्या हो चुकी है। तो इस बात का मिस्टर कार्ल के पास कोई भी सबूत नहीं है, ये सिर्फ अदालत का समय जाया करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं। माय लॉर्ड, इनका गुस्सा शांत हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ये अपनी पत्नी से बात कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं की और गुस्से में आकर प्रेम आहूजा की हत्या कर दी। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर कार्ल से ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये सडन प्रोवोकेशन था तो केएम नानावती आखिर क्यों प्रेम आहूजा के सर्वेंट से पूछकर उनके घर गए। माय लॉर्ड, इस बात पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या क्या करूं। आप भी हंसिए माय लॉर्ड, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बात ही कुछ ऐसी कह रही है कि वो सर्वेंट से पूछकर अंदर क्यों गए। माय लॉर्ड, ये जनरल सी बात है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि उससे या उसके किसी सर्वेंट से पूछेंगे कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने भी वही किया। वो प्रेम आहूजा के घर गए, सर्वेंट से पूछा कि प्रेम आहूजा साहब कहाँ हैं, तो सर्वेंट ने बताया कि वो साहब कमरे में है और फिर मेरे क्लाइंट प्रेम आहूजा के बेडरूम में गए। मेरे क्लाइंट ये नहीं कि किसी खिड़की से कूदकर अंदर गए थे और हत्या कर दिया और फरार हो गए। माय लॉर्ड, इस बात का यहाँ पे क्या मतलब बनता है। माय लॉर्ड, गुस्सा एक जज्बात है, इसे किसी भी यंत्र द्वारा मापा नहीं जा सकता। यह इंसान के माइंड पर निर्भर करता है कि उसे किस बात पर कितना गुस्सा है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को इस बात पर गुस्सा नहीं आया था कि उनकी पत्नी का संबंध प्रेम आहूजा के साथ है, बल्कि उनको इस बात पर गुस्सा आया था कि जब यह अपनी पत्नी की शादी का प्रस्ताव प्रेम आहूजा के सामने रखा तो प्रेम आहूजा उसे ठुकरा दिए और अपशब्द भी कहा। इस बात पर गुस्सा आया था मेरे क्लाइंट को, जिसकी वजह से इन्हें सडन प्रोवोकेशन बना था। दैट्स ऑल योर माय लॉर्ड, जैसे कि मिस्टर कार्ल कह रहे हैं कि हंसिए, क्योंकि अदालत में हंसने के अलावा कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, वैलिड पॉइंट्स तो बता नहीं रहे हैं। चलिए मान लेते हैं जैसा ये कह रहे हैं वैसा है। तो अगर ये सडन प्रोवोकेशन था तो मिस्टर कार्ल ये बताएं कि 1 गोली चल सकती थी, 2 गोलियां चल सकती थी, पर 3 गोलियां ही क्यों। माय लॉर्ड, लगता है मेरे काबिल दोस्त अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की है। माय लॉर्ड, क्योंकि इन्होंने नेवी एक्ट पढ़ा ही नहीं है। नेवी एक्ट में सेक्शन 18 ये बताता है कि मेरे क्लाइंट ही नहीं बल्कि हर उस नेवी ऑफिसर को 3 गोलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। माय लॉर्ड, 3 गोलियां, क्योंकि उन्हें ये सिखाया जाता है कि जरूरी नहीं कि जब दुश्मन सामने हो तो उसकी मृत्यु 1 गोली लगने से हो जाए। माय लॉर्ड, इसलिए नेवी एक्ट सेक्शन 18 के तहत हर उस नेवी ऑफिसर को 3 गोलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट इतने सालों की उनकी प्रैक्टिस थी, इसलिए उनसे 3 गोलियां चल गई और कुछ नहीं। माय लॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से यही पूछना चाहता हूँ कि प्रेम आहूजा अगर इतने ही सच्चे इंसान थे तो वो सिल्विया से शादी करने से क्यों इनकार कर दिए। माय लॉर्ड, जैसा कि मिस्टर कार्ल ने कहा कि मैंने नेवी एक्ट नहीं पढ़ा है, और देखिए तो सही वो किन बातों का वो बोल रहे हैं कि गुस्सा एक जज्बात है, किसी को भी आ सकता है। माय लॉर्ड, अगर ऐसा ही गुस्सा सबको आने लगा तो समाज में ऐसी ना जाने कितनी बुराइयां होने लगेंगी। और इन्होंने पूछा कि सिल्विया जी ने प्रेम आहूजा जी ने सिल्विया से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया। माय लॉर्ड, उन्होंने शादी करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि सिल्विया जी पहले से ही शादीशुदा थी। नहीं माय लॉर्ड, यहाँ शादी का मुद्दा ही नहीं है। माय लॉर्ड, प्रेम आहूजा एक अयास किस्म के इंसान थे, यह सिल्विया ने भी बताया, रिपोर्टर ने भी बताया, कोर्ट में पहले ही बता दिया गया है। माय लॉर्ड, प्रेम आहूजा एक सच्चे इंसान होते तो वो शादी कर लेते। ये वह एक अयास किस्म के व्यक्ति थे, उनका काम ही था लड़कियों को इस्तेमाल करना, छोड़ देना। वह सिल्विया जी के साथ भी यही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। माय लॉर्ड, जैसा ही प्रेम आहूजा के बारे में कह रहे हैं
कि वो बहुत अयास किस्म के व्यक्ति थे, ये था वो था, तो ऐसा तो हम सिल्विया जी के लिए भी कह सकते हैं कि वो प्रेम आहूजा को मना कर सकती थी कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं, वो इस रिलेशन में नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें तो सिल्विया जी के लिए भी हम बोल सकते हैं। That's all. ये काम आपका नहीं है, ये काम कोर्ट का है। आप सिर्फ आर्गुमेंट्स करें और गवाह पेश करें। Sorry, my lord. Sorry, my lord. Now I rest my case, my lord. Your closing, please. Closing arguments, please. माय लॉर्ड, सारे सबूत और गवाह अदालत में पेश कर दिए गए हैं। फैसला चाहे केएम नानावती के पक्ष में हो या प्रेम आहूजा के पक्ष में हो, पर समाज को पूरी सच्चाई का पता होना जरूरी है कि केएम नानावती इतने अच्छे नेवी ऑफिसर होते हुए भी एक ऐसी सोची समझी साजिश रचकर प्रेम आहूजा की हत्या कर देते हैं, और उन्हें इसके लिए आईपीसी के सेक्शन के तहत अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिए ताकि समाज को ये सीख मिले और ऐसा किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी बेगुनाह को अपनी जान ना गंवानी पड़े। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय लॉर्ड, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अब फैसला चाहे मेरे क्लाइंट के पक्ष में हो या प्रेम आहूजा के पक्ष में हो, पर समाज को पूरी सच्चाई का पता होना चाहिए। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन माय लॉर्ड, हर उस इंसान को भी पता होना चाहिए जो स्त्री समाज की इज्जत नहीं करता। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट से यह घटना यह एक सिर्फ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से हुआ है। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्लाइंट को ग्रेव सडन प्रोवोकेशन का कारण मानते हुए इसे आईपीसी की धारा 300 एक्सेप्शन के तहत मेरे क्लाइंट को बचाव का मौका जरूर दिया जाए माय लॉर्ड। नहीं तो अगर ये फैसला किसी भी निर्दोष इंसान के खिलाफ हो सकता है। दैट्स ऑल योर। सभी गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जूरी अपना फैसला दे। ओवर टू जूरी। जूरी ने 8 मेंबर नॉट गिल्टी, 1 मेंबर गिल्टी। जूरी ने दोनों धाराओं के तहत 8:1 से दोषी नहीं होने का फैसला दिया है। जूरी का फैसला ऐसा है कि हम लोग जूरी के फैसले से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारी नज़र में जूरी का बहुमत का फैसला ऐसा है कि कोई भी इंसान सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला नहीं सुनाएगा। न्यायालय यह फैसला सुनाता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी और नानावती को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। Judgment pronounced in open court. After taking all the appropriate steps by the concerned authorities, the file may be consigned to the court room. Thank you. The court is dismissed and decided. जूरी ने 8-1 के बहुमत से दोषी नहीं का फैसला सुनाया। सत्र न्यायाधीश जूरी के फैसले से सहमत नहीं थे और इस मामले को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। डिवीजन बेंच ने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यह कि क्या उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत जूरी के फैसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या जूरी के समक्ष कुछ सबूत रखने में चूक करना गलत दिशा निर्देश है? अभियोजन पक्ष का प्राथमिक तर्क ये था
कि उच्च न्यायालय के पास संहिता की धारा 307 के तहत ज्यूरी के फैसले में केवल गलत दिशा निर्देश के आधार पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के अवलोकन के आधार पर मामले की योग्यता पर जाने के लिए इसका कोई अधिकार क्षेत्र उनके पास नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में के.एम. नानावती को दिए गए पनिशमेंट को बरकरार रखा तथा बाद में के.एम. नानावती के अच्छे आचरण और उनके पूर्वकालिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सजा को माफ कर दिया। 3 साल की सजा काटने के बाद के.एम. नानावती को रिहा हुए और अपने बीवी बच्चों के साथ कनाडा चले गए एवं वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सन 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। I request to Professor Pankaj Tyagi sir to come on stage and share some valuable thoughts with us. The invited guests, the faculty members, and the students, we cater to the students from both the mediums, that is the English and the Hindi medium. I presume same is the case here, so I'll try to be bilingual as much as possible. First and foremost, I need to congratulate the organizers of this program, as well as the participants over here and the students who are witnessing, for putting up such a nice show. आप बधाई के पात्र हैं सभी लोग। See, the focus of legal education has witnessed a paradigm shift over the last many years. Our purpose in LLB course is to produce good quality legal professionals. This is so because the profession of an advocate, as far as its importance in the society is concerned, can be equated to only one profession, that is the medical profession. Like in the case of a doctor, same is the case over here. In both the cases, we have the power, that is the doctor as well as the advocate, we have the power to decide on the life and death of another. That is the client or the patient, as the case may be. This is an awesome responsibility. ये बहुत important responsibility है। तो उसके regarding हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम प्रोफेशन को उस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो लीगल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को उस तरह की दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उसमें हमें यही लगा कि कुछ कमियां हैं इनिशियली इन द 80s एंड द 90s, और इसकी वजह से एक शिफ्ट आया लीगल एजुकेशन में, जो अप्रोच हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे अभी तक। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज टुडे नोन एज क्लिनिकल लीगल एजुकेशन। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन कुछ और नहीं है बट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल पेपर्स। जो प्रैक्टिकल पेपर्स अभी 4 इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके कोर्स में, बी इट 3 years कोर्स और 5 years कोर्स, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, pleadings and conveyancing, and the fourth and the last, and which is the most important as far as clinical legal training is concerned, that is the moot courts. Moot courts are considered to be the best method of practical learning of law. लेकिन moot court के जरिए, या for that matter even the mock trials, because जब तक आप mock trial और moot court में difference नहीं समझेंगे तब तक आप moot court की niceties को भी नहीं समझेंगे। और moot court आपका एक करिकुलम का एक नेसेसरी कंपोनेंट है। तो थ्रू दीज टू एक्सरसाइजेज, that is the moot court and the mock trials, we try to develop in you 3 skills and abilities. Number 1 being the skill of interpretation and presentation. Second being the ability to counter interruptions. And the third is the ability to work in teams. Such abilities are considered to be what is called sine qua non of a successful lawyer. Without these abilities, in today's time, we cannot think of a person being a successful lawyer. Through these 2 exercises, we also try to judge you students on the basis of your legal knowledge, your common sense, and
We also analyze your analytical, interpretative, and argumentative skills through these exercises. All those who participate, we judge you on all these fronts. Now, as you might have witnessed, mooting exercise, or for that matter, the exercise that we undertook over here in this trial, they are entirely different from what we know as traditional classroom teaching. जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है उसमें आप आराम से बैठते हैं, जैसे अभी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, एंड यू इन कंफर्ट एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू बाय योर टीचर्स. मूटिंग एक्सरसाइज डिफरेंट है. मूटिंग एक्सरसाइज में यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक फॉर योरसेल्फ. आपने जो नॉलेज क्लासरूम में एक्वायर की है इन सो मेनी ईयर्स, वो आप यहाँ पर एक गिवन प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई करके वो सारा प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर एबल टू डू सो सक्सेसफुली, इट मीन्स कि जो आपने नॉलेज ग्रहण की है वो आप उसको ढंग से ग्रहण कर पाएँ, जो आपने टीचर्स ने आपको इम्पार्ट की है, और उसको आप अप्लाई करने में टू अ गिवन सिचुएशन यू हैव सक्सीडेड. तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है इन योर एबिलिटीज. तो मूटिंग एंड मॉक ट्रायल एक्सरसाइजेज आर एक्सरसाइजेज इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज वेल. ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो एक्सपीरियंस हैं, ये आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज उसको फाइन ट्यून करते हैं विद द टेक्नोलॉजी ऑफ लॉ, दैट इज कोर्ट क्राफ्ट. किस तरह से आपको किसी भी सिचुएशन को एक कोर्ट के अंदर हैंडल करना है. जब तक आप मॉक ट्रायल के बारे में नहीं जानेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू नो एज टू व्हाट मूट कोर्ट इज ऑल अबाउट. तो वो डिफरेंस, अगर आप मूट कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मॉक ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली देन विल यू बी एबल टू कम टू नो एज टू व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन द टू. सो एज फार एज यू माइट हैव सीन ओवर हियर, मॉक ट्रायल is nothing but a simulated original court. Then what is a moot court? Moot court is also a simulated court wherein two teams or two groups, like as was the case in the trial now, but here is the difference. In the mock trial, it is a simulated original court. Over here, it is a simulated appellate court. Why I say that it is a simulated appellate court as compared to a mock trial, which is a simulated original court, is because of the fact that in a moot court, you are required to argue on points of law only, which means that in a moot court, the facts are taken as settled. There are no witnesses to examine or cross-examine, and you have to argue on points of law only. तो जब तक आप मॉक ट्रायल और मूट कोर्ट दोनों प्रोसेस से नहीं गुजर लेंगे, तब तक आप मूट कोर्ट के अंदर और मॉक ट्रायल के अंदर डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे. वो कन्फ्यूजन रहता है. जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, हम लोगों ने विटनेस किया है कि ज़्यादातर जगह मॉक ट्रायल और मूट कोर्ट की क्या है, ये डिफरेंशिएट लोग बाग नहीं कर पाते हैं. तो बाय नाउ अब आपको ये पता लग गया होगा किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं. As far as K.M. Nanavati case is concerned, again the organizers, those who decided upon this case, they need to be commended because ये ऐसा केस है, इतना इम्पोर्टेंट केस है कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए लॉ के कि क्या है. As far as exception 1 to section 300 is concerned, this case is regarded as, जैसे कहते हैं गीता या बाइबल है. जो भी ऑब्जर्वेशंस इसमें उस समय के जस्टिस सुब्बा राव सुप्रीम कोर्ट जज उन्होंने दिए इस केस को डिसाइड करते वक्त, वो आज भी पैरामीटर्स हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये पता लगाने के लिए कि किन जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का जो टोटल आयाम है, जो स्कोप है, वो पूरा वेल डिफाइंड है. अगर आप इस केस को स्टडी एक ढंग से कर लेते हैं तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के केसेस में आप डिसाइड करने में शायद ही कभी कोई चूक करेंगे. इस केस के अंदर 4 प्रोपोजिशंस जस्टिस सुब्बा राव ने ले डाउन किया एज फार एज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज कंसर्न. इससे पहले माना जाता था कि एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट है कि इफ अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन पुट इन द प्लेस इन विच द अक्यूज्ड वाज, द क्वेश्चन वाज वेदर ही वुड हैव बीन aggravated to such an extent as to lose his power of self control. If that was the case, then accused should also be given the benefit of doubt, and he must be accorded the benefit of exception 1 to section 300.
meaning thereby that his case would now, since he is covered under exception 1, his case would not be treated as a case of murder, but instead it would be treated as a case of culpable homicide, not amounting to murder. In this case, as I already mentioned, 4 propositions were laid down. So first and foremost is whether a reasonable person belonging to the same caste, class, society, background to which the accused belonged, placed in the similar situation, would have lost his power of self-control. अब केवल रीजनल प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट नहीं रहा है कि वह व्यक्ति एक रीजनल प्रूडेंट पर्सन तो होना ही होना चाहिए, उसी कास्ट, क्लास, सोसाइटी, बैकग्राउंड का होना चाहिए जिसका कि एक्यूज्ड है, और यदि वैसा व्यक्ति भी अपना आत्म संयम खो देता है तो बेनिफिट एक्यूज्ड को भी मिलना चाहिए. दूसरी बात, इन इंडिया अनलाइक इन इंग्लैंड और ब्रिटेन wherein words and gestures को हम नहीं मानते grievance and provocation प्रोवाइड कर सकते हैं, unlike that place in India under certain circumstances even words and gestures में provide grievance and provocation. तीसरी बात उन्होंने कही कि even though the last penultimate act which caused grievance and provocation in isolation it may not be sufficient to provide grievance and provocation, लेकिन जो mental background है created by previous events not very far enough from the last penultimate act, अगर उनको जोड़कर देखा जाए and they form a chain and cumulatively seen, if they are sufficient enough to provide grievance and provocation, then the whole transaction, the series of acts should be treated as part and parcel of one single act, and if they are in themselves sufficient, cumulatively speaking, to provide grievance and provocation to a reasonable prudent person belonging to the same caste, class, category to which the accused belong, then too the benefit should be given. Thereafter, the last proposition was that the fatal blow should be clearly traced to the influence of passion, meaning thereby that there should be no time to cool down between the provocation and the incident. So these are the 4 propositions which you should not forget, and these should guide you whenever you take up a case relating to grievance and provocation. अब law is a very vast field. तो जो अभी जो शिफ्ट आया है, ये जो पैटर्न ऑफ लीगल एजुकेशन में है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल पेपर्स, मैं सोचता हूँ ये बड़ा वेलकम स्टेप है, एंड अभी हम इसको डेवलप कर रहे हैं एज एकेडमिशियंस, और आज के प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हम बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ लॉ इज़ एन ओशन, और जो हमारा बेसिक जो फोकस है वो सिर्फ हमारा जो है वो आपके अंदर एक लीगल एप्टीट्यूड पैदा करना है, एंड वी ट्राई टू डेवलप ऑल्सो इन यू द एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड इंटररिलेट लॉस, एंड आई थिंक वी आर सक्सीडिंग इन दैट फील्ड. थैंक यू वेरी मच. Congratulations. Now I want to request to our chief guest Sri S.C. Batra sir, former district judge, to give us guidance on this special occasion. Welcome sir. Tyagi ji, distinguished guests and students, and also of course member of the faculty. आपके यहाँ मैं आता रहता हूँ और आता रहूँगा. ये मेरा शौक़ भी है, और आपके पास आके मैं अपनी लीगल नॉलेज और लीगल फील्ड को रिजोनवेट भी करता हूँ. बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया सडन प्रोवोकेशन का. तो पहले तो मैं उसी केस के ऊपर आऊँगा जिसका आज सब कुछ आपने देखा. ये 2 चीज़ें थी जो अभी तक टच नहीं की गई. एक बात उसमें ये आई पूरी एविडेंस में कि उन्होंने जो रिवॉल्वर लिया अपने कुलीग से, अपने सीनियर से, वो ये कह के लिया था कि उन्हें किसी शादी में जाना है और उन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए. वो शादी किसी गवाह ने प्रूव नहीं की कि वास्तव में वो शादी थी भी या नहीं, और अगर वो शादी ही नहीं थी तो उनको रिवॉल्वर प्रोक्योर करने का प्लान ही प्रीमेडिटेटेड प्लान था. वो सडन प्रोवोकेशन में नहीं आ सकता.
दूसरी बात जो मुझे इस पर कहनी है, एक विटनेस ने अपने, ये इसको आप अदरवाइज बिल्कुल न लें, क्योंकि हम इस फील्ड में सीनियर हैं, आप इस फील्ड में सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में हैं, तो हम जो कह रहे हैं वो थोड़ी सी प्रोसीजरल एरर्स हो सकती हैं जो पता होनी चाहिए। मिनी आहूजा ने अपने बयान में ये कहा कि मैं उस वक्त टेलीविजन देख रही थी। 1959 में टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। तीसरी बात धारा 307 की आई कि धारा 307 में ये जज ने डिसएग्री किया जूरीज के वर्डिक्ट से। पहले तो ये कि जितने आज के बच्चे हैं वो जूरी सिस्टम से अवगत ही नहीं होंगे। एक जमाने में जब तक जूरी सिस्टम था, जजेस के साथ जूरीज पब्लिक के लोग होते थे तो बैठते थे, और फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जूरी की हुआ करती थी, और जो वो फैक्ट देते थे उन फैक्ट्स के बेसिस पर जजेस अपना जजमेंट दिया करते थे। अगर ज्यूरीज का ये फाइंडिंग आ गई कि इन्होंने ये मर्डर किया है, तो उस पर आगे क्या होना है ये जज देखेंगे। उस वक्त धारा 307 जिसका आज जिक्र आया, वो धारा 307 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की थी। आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। इस जजमेंट के बाद, नानावती जजमेंट के बाद, हमारे भारत से जूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। अब कोई जूरी सिस्टम नहीं होता है। फाइंडिंग ऑफ फैक्ट भी जज की होती है और लॉ की कंक्लूजन भी जज का ही होता है। लेकिन उस वक्त यह होता था, अगर धारा 307 में जज ज्यूरी के वर्डिक्ट से डिसएग्री करते थे, तो वो ये देखते थे, ये कहकर डिसएग्री करते थे कि क्या एक रीजनेबल ग्रुप ऑफ रीजनेबल इंटेलिजेंट पर्संस की भी यही फाइंडिंग होगी जो इन ज्यूरीज ने दी है। अगर वो ये सोचते थे कि जो इन ज्यूरीज का वर्डिक्ट है ये रीजनेबल वर्डिक्ट नहीं है, तो उस केस में वो मैटर को हाई कोर्ट रेफर करते थे, और फिर वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता था, मतलब जाना चाहे तो जाता था। दिस वाज द एंटायर सिस्टम। इसी में मैं एक बात प्रोसीजर पर ही और कहूंगा। प्रोसीजर में नानावती का स्टेटमेंट हुआ और उनको ओथ दिलाई गई। एक्यूज्ड का स्टेटमेंट कभी ऑन ओथ नहीं होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है। एक्यूज्ड से कभी कोई डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। एक्यूज्ड से सिर्फ जज सवाल पूछ सकता है। इसका एक एक्सेप्शन है, आज की जो धारा 315 है, नई सीआरपीसी 1973 वाली, उसमें एक सेक्शन 315 है। उस सेक्शन 315 में एक्यूज्ड कोर्ट में यह एप्लीकेशन देता है कि इस केस से रिलेटेड मटेरियल रेलेवेंट फैक्ट्स मेरी नॉलेज में हैं और मैं उनको कोर्ट के सामने ऑन ओथ बताना चाहता हूं। कोर्ट उस एप्लीकेशन को जब अलाउ करती है, तब उस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट ऑन ओथ होते हैं और तब डिफेंस काउंसिल को भी जिरह करने का हक हासिल होता है। यह थोड़ा सा एक प्रोसीजरल बैकग्राउंड थी जो लॉ के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता था। जहां तक सडन प्रोवोकेशन की बात है, जैसे प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि उस सोसाइटी में उस तरह की बातें क्या सडन प्रोवोकेशन पैदा करती हैं। मुझे आज अपना बचपन याद आता है। मैं बचपन में एक छोटे से शहर के बहुत ही अजीब से मोहल्ले में बड़ा हुआ हूं। वहां पर बाप, बेटा, भाई, बहन सब एक दूसरे को बायोलॉजिकल गालियां देके बात करते हैं। एक बार मैं जा रहा था तो दादा अपने पोते को बोलना सिखा रहा था और बोलने में भी वो बायोलॉजिकल गाली सिखा रहा था। जब मैंने उस दादा से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बोले इस गाली से जीभ और जबान दोनों चलते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जहां पर गालियों का कोई फर्क ना पड़ता हो, दादा पोते को गालियां सिखाते हो, तो वहां पर गालियों से सडन प्रोवोकेशन नहीं हो सकता। मैं इस पॉइंट पर आपके पास आना चाहता था। सडन प्रोवोकेशन के कई एग्जाम्पल होते हैं जो मैन टू मैन डिफर करते हैं। अब एक बार मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था आपकी अदालत में। अब मोदी जी ये कह रहे थे कि सब ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन सब बेईमान होते हैं, सारे पॉलिटिशियन बेईमान हैं। बोले मुझे तो गुस्सा नहीं चढ़ता। बोले जो बेईमान होंगे उन्हें चढ़ेगा, मैं तो नहीं हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कुछ भी कहे, अब उन्हें गुस्सा आता है या नहीं आता,
ये उनके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है, पर्सनल थॉट्स हैं, पर्सनल अपीयरेंस है, उनकी पर्सनालिटी है। किसी को उस पर गुस्सा नहीं आता। कोई मुझे बेईमान कहता मैं तो नहीं हूं, कहता रहे, मुझे तो गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ईमानदार है, अगर कोई बेईमान कह देगा तो गुस्सा आ जाएगा। सडन प्रोवोकेशन का एक छोटा सा केस मैं आपके सामने बताता हूं। एक 16 साल का लड़का ठेली पर खरबूजा लेने के लिए खड़ा हुआ। उस खरबूजे वाले ने खरबूजे की कीमत 12 रुपए बताई और उसके बाद 10 रुपए देकर वो लड़का चल गया। खरबूजे वाले ने पीछे से आवाज लगाई, ओ हराम की औलाद। अब वो लड़का पीछे मुड़ा और उसने खरबूजे वाले को यह कहा कि एक बार फिर कह के देखना। उसने कहा तेरे बाप का क्या, तेरी तो मां भी चालू है। और लड़के ने उसी की ठेली से उसका छुरा उठाया और उसके पेट में दे दिया। दिस वाज सडन प्रोवोकेशन। तो सडन प्रोवोकेशन, किसी को अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, दिस वाज सडन प्रोवोकेशन। इस केस में जो आज आपके सामने आया, इस केस में उसने पहले रिवॉल्वर एक फॉल्स प्रेजेंटेशन पर लिया। उसके बाद उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुम आहूजा से शादी करना चाहती हो? उसके बाद उसने प्रेम आहूजा से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगे? तब तक वो बहुत कंसर्न था अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए। जो शख्स उस वक्त तक अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए इतना कंसर्न है, वो सडन प्रोवोकेशन कैसे हो सकता है? उसे तो पूरी सूझबूझ थी, अपनी फैमिली का वेलफेयर ढूंढ रहा था वो। तो ऐसे में यही हालात होते हैं सडन प्रोवोकेशन देखने के। जो हर मेंटल टेम्परामेंट हर एक का अलग होता है, सडन प्रोवोकेशन का भी टेम्परामेंट अलग होता है। बेसिक और कार्डिनल प्रिंसिपल ये है जो प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि उस तरह की सोसाइटी में उस तरह की घटनाएं क्या सडन प्रोवोकेशन पैदा करती हैं, वो कार्डिनल प्रिंसिपल है। लेकिन पर्सनल मेंटल टेम्परामेंट, जैसे मैंने आपको खरबूजे वाले बच्चे का बताया कि वो अपने मां के बारे में नहीं सुन पाया, ये पर्सनल टेम्परामेंट है। ये बहुत गहरा विषय है, आपको इन्हीं सोच के साथ आगे बढ़ना है। हम हर चीज का मेंटल टेम्परामेंट, और आपको वकील होने के साथ साथ आगे आगे आप प्रोफेशन में आएंगे, मुझे कई बातें ऐसी याद आती हैं कि कैसे कैसे उन्हीं बातों में से बातें निकाली जाती हैं और दोनों सही लगती हैं। सन 1977 में मेरी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में थी। वहां पर एक बहुत अच्छे वकील थे, नजर मोहम्मद जैदी। उस वक्त एक सेल डीड कैंसिलेशन का केस था और उस कैंसिलेशन में उन्होंने गवाह से पूछा कि तुम, यह था कि उस लड़के का दिमाग ठीक नहीं था, पागल था। उन्होंने पूछा कि कैसे पागल था, क्या करता था ये? तो गवाह ने जवाब दिया कि ये लड़कियों के पीछे नंगा भाग लेता था। इस तरह की उन्होंने बातें की। अब बहस की स्टेज आई, बोले ये पागल था या ज्यादा चालू था? ये लड़कियों के पीछे क्यों भागता था, लड़कों के पीछे क्यों नहीं भागता था? तो इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह से एक डॉक्टर ने अपने मेडिकल इंजरी रिपोर्ट में लिखा है इसको 8 चोटें थी। गवाह जिसको चोटें आई उसने कहा मेरे 4 चोटें थी। अब वो 4 चोटें थी या 8 चोटें थी, इस पर बहस हुई। तो कोर्ट ने यह कहा कि जिसको ये चोटें लगी हैं, जैसे डॉक्टर साहब त्यागी जी ने बताया, प्रोफेसर त्यागी ने, उसके हालात कैसे हैं? वो एक किसान है। किसान को गन्ना छीलते वक्त छोटे मोटे एब्रेशंस आते रहते हैं, वो उसे चोट ही नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर उसको चोट मानेगा। वहीं से एनालॉजी आती है कि जो जिस हालात में है, उन हालात में उसका असेसमेंट कैसे होना चाहिए। वो क्रिमिनल लॉ कोई भी हो, उस हालात में वो कैसे होना चाहिए। और मैं आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आप इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, उसमें आप एक्सेप्शंस को ही ज्यादा महत्व दें। क्योंकि जब भी आप एज एडवोकेट कोई डिफेंस लेंगे तो आपको सबसे पहले एक्सेप्शंस में ही अपने आप को कवर करने की कोशिश करनी होगी। इसीलिए आज का प्रयास बहुत सफल था। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूं। Extend my thanks to our college management to provide all facilities and make our task easier for this event.
And a very special thanks to our academic director, Sir Dr. K.K. Mittal, and Principal Sir Dr. Pushpraj, who are always there to guide and motivate us to do our best and standing as pillars of strength with us. I also want to extend my gratitude to our event coordinator, Mr. Manish Jaiswal, and other faculty members, Ms. Honey Singh, Mr. Dinesh Kumar, and Ms. Ela Agrawal. We are fortunate enough to be backed by such team members. Especially, I would like to thank our budding rock stars who made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. The program was very amazing and enjoyed by each one of us present here. I would also like to thank our amazing audience who cooperate us in maintaining decorum of auditorium and make this event successful. Lastly, I would like to thank to the people who work behind the scene to make this event happen. Thank you.